Elizabeth. All of the IELTS aspirants know this name pretty well. She is the famous personality in IELTS category. She is the one who I followed during my IELTS preparation. And all of you must also have gone through her videos. If this still isn't ringing any bells, watch this video until the end. She is none other than our favorite IELTS Liz. Now I'm sure you all know her. You all have watched her videos. But do you know what all she has gone through? She's an inspiration to all of us. What she has gone through in her life, none of us have gone through. We simply need to feel the pain she has gone through. Despite all the discomforts, despite all the problems, adversities in her life, she created all the videos for us. She basically was undergoing some deleterious illness, and because of which she couldn't even move. She couldn't walk. She couldn't even do some basic chores on her own. She couldn't cook food. And despite all these hurdles, she shot videos for us. She could get only 30 to 45 minutes in a day. And in those 30 to 45 minutes, she was creating videos for us. I know you all have goosebumps right now the way I have. She inspired me a lot. I have gone through this story recently, and when I read this story, I was thinking I have not done anything what she has done in her life. If a person can do things like such, if a person can attain this much success, and that too with the limited resources, or we can say with no resources, then why can't we? She just believed in one thing, and that was seize the day. So she only thought about a day. She thought about one thing at a time only. She had only 30 minutes a day, and in those 30 minutes, she shot videos, and that too in one of her spare bedrooms. Her family did not support her. Her family was not with her when she needed them the most. So think about this personality. Think about what she had gone through. And despite all the things, she has this IELTS website, IELTS channel, which every single IELTS YouTuber has gone through. So guys, please try to understand one thing. Why she is an inspiration to us. Because she is the one who was going through all the adversities. And despite the hurdles, she attained success. We all can achieve everything in our lives. It's simply about having the perfect vision. Even if you have difficulties in your life, even if you have any problem like such in your life, you can do it. Focus on seizing the day. Focus on doing something meaningful every single day. Hats off to IELTS Liz. And thank you so much Liz for inspiring us all. Liz ने हमें बहुत ज़्यादा inspire करा with the help of her story. We got to know a lot about her और बहुत ज़्यादा deeply connect कर पाई मैं लिज के साथ जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी, और मुझे लगता है आज ये स्टोरी सुन के आप भी इसी तरीके से कनेक्ट कर पाए होंगे. So just as a small tribute to Liz, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिज की राइटिंग की एक्चुअली एग्जाम्पल्स के ऊपर 4 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी इफेक्टिव एग्जाम्पल्स लिखने के लिए. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन. बहुत बार जब हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो व्हाट डू, वी सिंपली राइट लाइक, है ना. हमने एग्जाम्पल्स बताने और हम लिख देते हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, लाइक कार पूलिंग. हम 3-4 चीजें हमें लिखनी है तो हमने लाइक लिख दिया. So please do not use like. Like is an informal word. Instead of like, you can use such as. या फिर आप यूज कर सकते हो namely. या फिर आप यूज कर सकते हो for example. Such as या namely. Such as के बाद simply take care of this कि आपने वहां पे 4 to 5 जो भी आपने examples देने वो आप दे सकते हो, but like को avoid करो, such as और namely को यूज करो. Now टॉकिंग अबाउट द सेकंड टिप बाय लिज. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हैं
और वहां पे हम बताना चाह रहे हैं कि दीज आर दी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जंक फूड की, अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारी डिलीटेरियस इलनेसेस आती हैं, है ना। तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं ना एग्जाम्पल, जरूरी नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल लिख के ही आप स्टार्ट करो, देर आर अदर वेज ऑफ गिविंग एग्जाम्पल, है ना। सो आप कर सकते हो ऐसे, कार्डियक इश्यूज, ठीक है, कार्डियक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, ठीक है। सो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल भी हो गया एंड दैट टू नॉट इन द ट्रेडिशनल वे। हम उसी तरीके से एग्जाम्पल क्यों दे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, वो तरीके से तो बेटर है कि अगर हम इस तरीके से एग्जेम्पलीफाई कर दे। हमने इलनेसेस के नेम्स भी बता दिए और नेम्स के साथ साथ हमने उसको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ्रेम करके दे दिया। सो दिस वाज द सेकंड टिप बाय लिज एंड दैट टू रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यार आपको लग रहा है कि ये जो टिप्स हैं, है ना, ये आती हैं तो मैम ये रोज रेगुलरली कुछ ना कुछ टिप्स, यू वोंट बिलीव अराउंड 150 to 200 कॉल्स हमारे पास रोज आती हैं और मैं ऑफिस में नहीं होती, आई वर्क फ्रॉम होम, ओके। सो वो 200 कॉल्स में ऐसा होता है कि मैम सोनम मैम से बात करनी है, सोनम मैम हमें टिप्स बताएं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, अगर मैं आपसे बात कर पाती तो आई एम मोर देन विलिंग टू डू सो, बट होता क्या है, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उससे पहले मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं अभी, और पिछले 3 दिनों में मैं 3 से 4 ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुकी हूँ। सो इन्हीं सब चीजों में पूरा टाइम निकल जाता है आप लोगों के लिए, कंटेंट प्रिपेयर करना, वीडियो शूट करना और ये सब। सो व्हाट एग्जैक्टली, अगर आप चाहते हो कि हम रेगुलर टिप्स आपके साथ या कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, रील्स, सो सिंपली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है दैट्स ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड ओवर देयर यू कैन इवन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द वीडियो आंसर फ्रॉम मी। सो वहां पे हमारे आस्क मी एनीथिंग सेशन होता है, वो वीकली हेल्ड होता है और उसमें आप क्वेश्चन पूछते हो और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम देते हैं, कभी मैं देती हूँ, मेरे और टीचर्स भी देते हैं। दैट्स व्हाट वी डू एंड आई एम श्योर कि जब आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि वहां पे हम मोटिवेशनल टिप्स भी डालते हैं एंड टिप्स रिलेटेड तो दिस भी डालते हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल देती हूँ यार, कल मैं कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी एंड दैट ट्रेनिंग वॉज बीइंग टेकन बाय रॉबिन, ओके। सो आई रियली लाइक द एजुकेटर, बहुत ही अच्छा एक उन्होंने फ्रेज बोला जो मुझे काफी अच्छा लगा। हम हमेशा सुनते आए हैं आज तक, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, यही सुना है ना, मैंने भी यही सुना था। तो पहली बात तो ये मैन परफेक्ट ही हमें सही नहीं लगता था, बट वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि स्टीरियोटाइप करा गया था, वो है सबके लिए है, फॉर ऑल द पर्सन्स, है ना। बट उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई जो मुझे लगा कि मेरे को भी आज के बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं बोलना, मैं बोलूंगी प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। यार अगर आज रिजल्ट नहीं आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आएगा, प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस करने से प्रोग्रेस होगी। दैट्स व्हाट वी नीड प्रोग्रेस, है ना, हमें प्रोग्रेस चाहिए, हमें परफेक्शन नहीं चाहिए। परफेक्शन धीरे धीरे आएगी, डे 1 पे किसी को भी परफेक्शन नहीं मिलती, प्रैक्टिस से प्रोग्रेस मिलेगी। सो आप आज प्रैक्टिस करो, रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा कोई इश्यू नहीं है, कल दोबारा करो, फिर भी स्कोर नहीं आ रहा दोबारा करो, करते रहो, प्रोग्रेस पक्का होगी ही होगी। सो है ना बहुत अच्छी टिप। इसी तरीके से यार कभी भी प्रैक्टिस से मत डरो एंड आगे बढ़ते रहो, क्योंकि देखो हम सबका, हमारा मेन एम बिल्कुल सेम है, चाहे वो मेरा एम हो चाहे वो आपका एम हो, वो बिल्कुल सेम है। आपको आइल्स का स्कोर अचीव करना है और मेरा मेन ये है कि मेरी वीडियोस इस तरीके से डिलीवर हो कि आपका आइल्स का स्कोर आए। तो एम तो दोनों का सेम ही है ना, तो अगर जर्नी सेम है तो साथ में क्यों ना क्रॉस करें। सो सिंपली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच टिप्स। नाउ हम आते हैं, बात कर रहे थे हम लिज की टिप्स की। सो 2 टिप्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आती है बात हमारी 3rd टिप की रिलेटेड एग्जाम्पल्स इन राइटिंग टास्क। सो हम जो एग्जाम्पल्स लिखते हैं, पहले हम लिखते होते थे एन आर्टिकल पब्लिश इन द टाइम स्टेटेड दैट 70% ऑफ द पीपल। यार ये भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी हो गया, व्हाई डोंट वी चेंज इट, बिकॉज एग्जामिनर्स बहुत बार ये देख चुके हैं। तो हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जब मैंने बैंड-8 वाला लेवल के लिए प्रिपेयर करा था और जब बैंड-8 आए थे तो उस एस्से में मैंने कौन से 2 एग्जाम्पल्स लिखे थे वो अब इसमें आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने लिखा था तो मैं भी रिलेट कर पा रही थी इस टिप को लिज की।
So basically, हम instead of writing an article published, we can simply write a major proportion of people working in the UK or working in India. ठीक है, बहुत सारे लोग वर्किंग इन इंडिया. अगर आप चाहते हो इंडिया में बैंगलोर का एग्जांपल देना चाहते हो, वैसे इट्स बेटर कि ग्लोबल एग्जांपल्स दो. अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन द यूके और वर्किंग इन इंडिया resort to buying ready-made meals for convenience. अब now what happens? Most of them are working. हमारा एग्जाम्पल उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि ज्यादातर वर्किंग है, तो रेडीमेड मील्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है. और इसी चीज को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं वहां पे ये बताऊंगी कि मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन द यूके रिजॉर्ट टू बाइंग रेडीमेड मील्स फॉर कन्वीनियंस बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू कुक. एंड ओवर देयर सर्वेंट्स भी नहीं है ना, बहुत एक्सपेंसिव है. अगर है भी हेल्प तो बहुत एक्सपेंसिव है, अदरवाइज है ही नहीं. सो व्हाट दे डू, इट्स बेटर टू बाय रेडीमेड मील्स. दैट्स व्हाट दे डू. एग्जाम्पल शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस. जो आपके बॉडी पैराग्राफ 1 का आइडिया है उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल होना चाहिए. एग्जाम्पल कुछ और नहीं होना चाहिए. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. ओके, नाउ ये तो बात आ गई हमारी थर्ड टिप की. थर्ड टिप भी हो गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना. हम क्या करते हैं अगर हम बात करें कोई भी एग्जाम्पल लिखने की, तो वी सिंपली राइट फॉर एग्जाम्पल. हम फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, टू इलस्ट्रेट फर्दर भी लिख सकते हैं, टू फर्दर बॉल्स्टर माई ओपिनियन भी लिख सकते हैं. नहीं तो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने अपने बैंडेड एसे में इनकॉर्पोरेट करा था, एंड दैट इज इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट. ये चीज बहुत बार प्रूव हो चुकी है. सो इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट पीपल प्रेफर कंज्यूमिंग जंक फूड ओवर द हेल्दी फूड आइटम्स एज इट्स डिलीशियस. सो लोगों को ये लगता है, जो भी आपके माइंड में एग्जाम्पल है, जो भी आपके बॉडी पैराग्राफ के आइडिया से रिलेटेड एग्जाम्पल है, वो ऐड करो. बट कैसे ऐड करो? इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट. सो सिंपली स्पीकिंग, ट्रेडिशनल वे को हमने छोड़ दिया, हम कुछ न्यू यूज कर रहे हैं. एंड दीज आर द टिप्स गिवन बाय लिज एज वेल. सो सिंपली आप ये 4 टिप्स को फॉलो करो, एग्जाम्पल राइटिंग आपके लिए काफी इजी हो जाएगी. एंड ये वही टिप्स हैं जिसमें मैंने अपने फीडबैक भी ऐड करा है. जो मुझे लगता है, जो मैंने इनकॉर्पोरेट करा है, वो चीजें भी मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच लिज फॉर सच knowledgeable tips, and we will surely incorporate all the tips, है ना. So incorporate करोगे, so do let us know in the comment section. Thank you and bye bye.